Hello, good morning, students. Today we start with lesson number 47. And today we are going to learn about the force between two long current carrying parallel wires. Is going to be very easy, but the two results that we are going to derive, they are really important from exam point of view. So here we have the question, show that the force per unit length between two long parallel wires is given by the formula mu naught I1 I2 divided by 2 pi r. In two different situations. Number one, when the current is flowing in the same direction, and number two, when the currents are flowing in the opposite direction. So we begin with the first part, when the currents are in the same direction. Students, we have shown two long parallel wires by the name 1 and 2. A current I1 is flowing in wire number 1. I2 is flowing in wire number 2. Separation distance between the two wires is R. Now we have to find the force acting on one wire due to the other. So we begin by saying that when a current I1 will flow in this wire, it will produce some magnetic field at a distance near wire number 2. Let this field be called B1. So what is B1? The magnetic field produced by wire number 1 near wire number 2. Now, what is the formula for the magnetic field produced by a long straight wire at a distance r? That is mu naught I, which I1 divided by 2 pi r. So this is the magnetic field which is produced by the long straight wire. And what will be its direction? Dear students, you already know that we use Ampere swimming rule. We swim in the direction of the current I1. The point is lying to our right, and therefore the direction of the magnetic field is inwards. Now we say that wire number 2, which carries current I2, is placed in an external magnetic field B1, and therefore it should experience some force. Students, do you remember वो कौन सा रूल था to determine the direction of the force acting on a current carrying wire? That was left hand rule. So we hold our first three fingers like this. I'm just reminding you, ये वाली finger gives the direction of magnetic field, ये finger gives the direction of motion of positive charge या direction of current, तो ये thumb gives the direction of the force. Let me now hold my fingers so that they correspond to this situation. देखिए, इसमें magnetic field is going inwards and the current is going that way, so the force is towards left, and this force we call as F suffix to 1. You say I have understood. So let us repeat the same process for wire B. Wire number 2, it carries a current I2, तो naturally यहाँ पे magnetic field होगी. उस मैग्नेटिक फील्ड को B2 कह सकते हैं. उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r. कौन सा I2 हो जाएगा. क्या डायरेक्शन होगी? आप स्विम करें इस डायरेक्शन में. ये पॉइंट आपके लेफ्ट में लाई कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट आउटवर्ड्स. सो ये जो वायर नंबर 1 है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B2 में रखी है, will experience some force.
इस फोर्स को हम F सफिक्स 1 2 कहते हैं. What does it mean? Force acting on wire number 1 because of a current flowing in wire number 2. क्या डायरेक्शन होगी? अगेन हमने लेफ्ट हैंड रूल लगाना है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आई मस्ट होल्ड माई forefinger upwards क्योंकि magnetic field is going that way. I must hold my central finger this way, then the direction of the current is this. Students, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जब दो currents are flowing in the same direction, तो इस वायर पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इस वायर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, and therefore we say कि when currents flow in the same direction, they get attracted. बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सेंटेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि when currents flow in the same direction, they attract each other. Let us now begin with little bit of mathematics. So, we say that the magnetic field produced by wire number 1 near wire number 2 is B1. May I just show you again? B1 was mu naught I1 divided by 2 pi r. F21 क्या था? The force experienced by wire number 2 when placed in a magnetic field B1. तो फोर्स का स्टूडेंट्स देखिए जनरल फार्मूला तो होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए वो साइन 90 विल बिकम 1. मीनिंग ये है कि इस केस में फोर्स का फार्मूला होगा BIL. हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं? फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर नंबर 2, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है इन वायर नंबर 1. तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? B1. कौन सा करंट? I2. तो F21 विल बी, B1 की वैल्यू लगा दी, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू I2 इंटू L. अब L नीचे ले आए तो F सफिक्स 21 डिवाइडेड बाई L को पढ़ेंगे कैसे? ये है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. यू विल से कौन सी लेंथ की बात कर रहे हो? किस वायर की लेंथ की बात कर रहे हो? वी ऑलवेज से दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट द कॉमन लेंथ. कॉमन लेंथ, L का मतलब है कॉमन लेंथ. फॉर एग्जाम्पल ये वायर 5 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो L की वैल्यू क्या लेंगे? कॉमन लेंथ, दैट इज 1 मीटर. सो यू कुड ऑल्सो से कि L का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द स्मॉलर वायर. इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि इट इज द कॉमन लेंथ. ओके, वी आर रिपीटिंग द सेम प्रोसेस एंड वी आर सेइंग कि जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय वायर नंबर 2 नियर वायर नंबर 1, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, एंड F12 का मतलब है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर नंबर 1 ड्यू टू 2, एंड दैट इज अगेन BIL. याद रखना कितना आसान है. F इज इक्वल टू BIL. तो कौन सी B? B2 I1 इंटू L. तो F12 डिवाइडेड बाई L विल बी दिस. आप स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को देखें, दे आर 100% सेम, एंड देयरफॉर वी कैन से कि इन जनरल F बाई L की वैल्यू इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r. तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Let us begin with the second part in this. तो वो है when the currents flow in the opposite direction. तो may I just explain the diagram students once to you कि देखिए डायग्राम में ये करंट I1 तो ऊपर को जा रहा है और I2 is coming this way, तो these two wires carry current in opposite direction. ये वायर 1 है, ये वायर नंबर 2 है. अब जो मेथड है वो 100% सेम है. क्या मेथड है? सबसे पहले
हम ये कहते हैं कि व्हेन ए वायर कैरिंग करंट I1 विल फ्लो इन वायर नंबर 1, तो उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड को B1 कहते हैं। हम स्विमिंग रूल लगा के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। यू विल से बड़ा सिंपल है, स्विम करो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉइंट आपके राइट में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गई। अब ये जो सेकेंड वायर है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इट इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B1, तो इस पे फोर्स लगना चाहिए। लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए। स्टूडेंट्स, प्लीज होल्ड योर फिंगर्स इन सच ए वे दैट इट कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस सिचुएशन। देखिए, मैं सबसे पहले 4 फिंगर यूज कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, करंट किधर को है, इधर को आ रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, टू द राइट, और इस फोर्स को हम F21 कहेंगे। पढ़ते कैसे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इसी तरीके से जब एक करंट फ्लो करेगा इन वायर नंबर 2, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप स्विम करें इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट आपके राइट में है, इसलिए इनवर्ड हो गया। अब आप फिर से लेफ्ट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन निकालें ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और करंट देखिए इट इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, तो फोर्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हमने इस डायग्राम से ये पता लगा लिया कि जब करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो द वायर्स रिपेल ईच अदर। तो दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस, कि व्हेन करंट्स फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन they repel each other. Now let us do the mathematics of the same kind what we did in the first case. It's very easy, just a repetition. तो B1 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर नंबर 1 नियर 2, उसका फॉर्मूला होता है म्यू0 I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो सेकेंड वायर ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B1, तो उस पर फोर्स लगेगा, and force acting on 2 due to 1 will be equal to F is equal to BIL, तो B1 I2 into L, B1 की वैल्यू लगा दी और L को नीचे ले गए, F21 upon L लिख दिया। सिमिलरली हमने कहा कि let B2 be the magnetic field produced by 2 near 1, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, एंड देन यू से कि जो वायर नंबर 1 है उस पर फोर्स लगना चाहिए बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद है BIL, तो वो होगा B2 I1 into L। तो आपने फिर देखा कि F12 by L इज म्यू0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को फिर देख लें जैसे पहले वाले पार्ट में देखा था, तो दे आर सेम। तो इन जनरल वी से F by L इज इक्वल टू म्यू0 I1 I2 divided by 2 pi r। Dear students, एग्जाम में हमने वही डेरिवेशन करनी है जो केस हमसे पूछा जाए। अगर तो ये पूछते हैं कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ व्हेन करंट्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, तो पहले वाली होगी, और अपोजिट डायरेक्शन की है तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है, तो वो सेकेंड वाली होगी। तो दोनों केस में स्टूडेंट्स फॉर्मूला वाज सेम। नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आस्क अस टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न व्हेन द करंट्स आर फ्लोइंग से इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 वायर्स हैं, वायर नंबर 1 एंड वायर नंबर 2 कैरिंग करंट I1 एंड I2। तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैड ऑलरेडी लर्न्ड कि जब भी एक करंट फ्लो करेगा इन ए वायर, तो उसके अराउंड देयर इज गोइंग टू बी व्हाट,
कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपने इस वायर को राइट हैंड में पकड़ना है और ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू वायर नंबर 1, इट इज़ गोइंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी पकड़ लें तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स देन दे कैन मर्ज एंड फॉर्म लाइक दिस। So this is how we draw the magnetic field pattern when currents are flowing in the same direction. When currents flow in opposite direction, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ आप देखें कि ये जो डायरेक्शन है ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों फील्ड्स आपस में मर्ज नहीं कर सकती। दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज the two diagrams are just the same. Let us now begin with the next question. ये 1 mark question है। ये है to define 1 ampere current on the basis of magnetic effects of current. You see students, if we try to memorize the definitions, then there are so many definitions in physics that it is really very, very difficult to memorize them. So we have to learn the technique of how the definitions can be learned. सबसे पहले we must recall कि force per unit length between two long parallel wires का ये formula होता है mu naught I1 I2 divided by 2 pi r. You say I know this, then there is nothing to really worry. थोड़ी देर के लिए I1 की वैल्यू 1 मान लो, I2 की वैल्यू भी 1 मान लो, R की वैल्यू भी 1 मान लो। यू विल से मान लिया, तो फिर बचा क्या? F by L is equal to mu naught upon 2 pi बचा। रिमेंबर म्यू नॉट की क्या वैल्यू थी? 4 pi into 10 raised to minus 7, तो ये आ गया 2 into 10 raised to minus 7 और इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। Now, if you know this formula and the technique, you are ready to sing the definition of 1 ampere current. You see, 1 ampere current वो current होता है which when flowing through two long parallel wires separated by a distance of 1 meter, कहाँ पे? In air or vacuum, experiences a magnetic force of 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter. May I read it from here now? 1 ampere current is that current which when flowing through two long parallel wires separated by a distance of 1 meter in air or vacuum experiences a magnetic force of 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter. So, quite a simple definition for 1 mark. Now we are going to learn a small point. देखिए, अगर करंट्स फ्लो करते हैं सेम डायरेक्शन में तो I1 इंटू I2 को पॉजिटिव माना गया है बिकॉज दे आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। आपको याद होगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होता है और अट्रैक्टिव फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? ए नेगेटिव फोर्स। फिर से कह रहा हूँ, अगर 2 वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जो प्रोडक्ट है I1 इंटू I2 इज टेकन एज नेगेटिव एंड आप जानते हो कि इस केस में फोर्स इज रिपल्सिव और रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। सो दीज 2 पॉइंट्स वी आर जस्ट गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस question was there in the sample papers and the question says draw a graph showing the variation of, पहला पार्ट है showing the variation of force per unit length versus I1 I2 when R is constant. Dear students, ग्राफ बनाने से पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ता है। तो F by L का फॉर्मूला आपको याद है, ये होता है। तो इसको मैं ज़रा स्टाइल से लिख लूँ।
F by L will be mu naught upon 2 pi r into, I can write I1 into I2. अब आप देखें क्वेश्चन में कहा है कि R क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसी लगती है, y इज इक्वल टू mx। यू विल से समझ आ गया, y इक्वल टू mx का मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने x एक्सिस पे I1 इंटू I2 लिया है पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस I1 इंटू I2। ऊपर F बाई एल लिया है पॉजिटिव और नीचे लिया F बाई एल। स्टूडेंट्स आप खुद ही बताएं कि जब करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन तो I1 I2 को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव। तो इसका मतलब जो भी ग्राफ बनाना है वो इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहां आ जाइए, अगर I1 I2 अगर करंट्स देखिए फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं, और जब करंट्स फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होता है, रिपल्शन, और रिपल्शन इज टेकन एज व्हाट, पॉजिटिव। सो F बाई एल पॉजिटिव हो और I1 I2 नेगेटिव हो, ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा, एंड दिस इज द कंबाइंड ग्राफ फॉर both when I1 I2 is positive and when I1 I2 is negative. चलिए एक और करते हैं इसमें। He says draw a graph between F by L versus R when I1 I2 is constant लेकिन पॉजिटिव। तो हमने यही वर्ड पकड़ना है कि I1 I2 क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। सबसे पहले F बाई एल वर्सेज R ड्रॉ करना है, तो ये पता होना चाहिए कि F बाई एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो देखें बहुत इजी है, जब I1 I2 पॉजिटिव होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए F बाई एल इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव, और F बाई एल अगर अट्रैक्टिव है तो F बाई एल इज वॉट, नेगेटिव। मतलब ये R था और यहाँ पे हमने F बाई एल नेगेटिव लेना है क्योंकि इन्वर्सली था, तो कर्व लाइन आएगी। अगेन जस्ट ए रेपिटेशन ही है ये, F बाई एल वर्सेज R व्हेन I1 I2 इज कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव। तो I1 I2 अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब करंट्स आर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो I1 I2 हो गया नेगेटिव, F बाई एल विल बी रिपल्सिव एंड F बाई एल इज पॉजिटिव। तो F बाई एल पॉजिटिव लिया एंड ए कर्व लाइन बना डाली। दैट्स हाउ वी ड्रॉ दिस। चलिए दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन सेज कि find the magnetic field at the point P and also F by L acting on wire number 2। तो दो अलग अलग क्वेश्चंस हो गए, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। Let me explain the diagram first. 3 wires are there, 1, 2 and 3. 1 में current is flowing to the right, 2 में it is flowing to the left 3I, and थर्ड वायर में राइट में करंट जा रहा है और उसकी वैल्यू है 4I। सेपरेशन डिस्टेंस यहाँ पे R है, यहाँ पे 2R है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए वायर ऑन द वायर इटसेल्फ इज 0। जैसे मान लिया ये वायर है, इट कैरीज ए करंट एंड आई आस्क यू व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर इटसेल्फ ड्यू टू दिस वायर, इस वायर की वजह से इट विल बी व्हाट, 0। तो
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द पॉइंट P वायर नंबर 1 की वजह से नहीं हो सकती, तो फिर किसकी वजह से हो सकती है? वायर नंबर 2 और वायर नंबर 3। वायर नंबर 2 में करंट इधर जा रहा है, तो क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की? इनवर्ड्स। तो यहां मैंने लिखा BP2। क्या मतलब? मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू वायर नंबर 2। थर्ड वायर की वजह से देखें करंट इधर को जा रहा है, अगर आप स्विम करते हो तो वो लेफ्ट में पड़ रहा है आपके, एंड दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। अब व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गई वेक्टर एक्टिंग आउटवर्ड माइनस वेक्टर एक्टिंग डाउनवर्ड। तो वेक्टर एक्टिंग अपवर्ड क्या है? BP3। हाउ डू वी रीड? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ड्यू टू वायर नंबर 3। क्या फार्मूला था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट वायर म्यू नॉट आई, कौन सा आई? 4I डिवाइडेड बाय 2πr, डिस्टेंस देखना है टोटल 3R, माइनस BP2 2 की वजह से यहाँ पे म्यू नॉट 3I, कितना करंट था? 3I डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? R, 2πr। तो स्टूडेंट्स इसमें से ये म्यू नॉट I अपॉन 2πr कॉमन ले लिया, एंड दैट्स हाउ वी गेट इट। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, नीचे। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ जाता तो उसका क्या मतलब होता? उसका मतलब होता कि मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट। अब हमें सेकंड पार्ट अटेंड कर रहे हैं, वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर नंबर 2। ये है वायर नंबर 2। आप देखें स्टूडेंट्स, ऐसे याद कर लें कि जो पहले स्टेटमेंट बता रहा हूँ, फिर मेथड बताऊँगा कैसे उसको याद करें। अगर दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो अट्रैक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो रिपल्शन होती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर टू पीपल आर वॉकिंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन तो थोड़ी बहुत देर के बाद दोस्ती हो ही जाएगी, अट्रैक्शन होगा। तो बस एक सेंटेंस याद करना है कि जब करेंट्स आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्शन होती है, दैट्स इट। अगर ऐसा नहीं तो फिर रिपल्शन। ओके, अब आप देखें ये वायर नंबर 2 पे एक फोर्स लग सकता है ड्यू टू 1 और एक फोर्स लग सकता है ड्यू टू 3। वायर नंबर 2 और 1 के बीच में किस टाइप का फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है, तो नेचुरली फोर्स विल बी दिस वे। और 3 और 2 को देखो तो इनमें भी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, इसलिए क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। अब रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं? वेक्टर एक्टिंग अप माइनस वेक्टर एक्टिंग डाउन। तो F23/L का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या था? म्यू नॉट I1 इंटू I2 3I इंटू 4I डिवाइडेड बाय सेपरेशन 2π इंटू सेपरेशन डिस्टेंस 2R। यहाँ पे भी 2 1 को देख लो तो म्यू नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू करेंट्स I इंटू 3I डिवाइडेड बाय 2π डिस्टेंस विच इज R। अब इसमें से ये टर्म्स कॉमन लेके और हमने ये आंसर लिखा, तो ये आंसर आ गया विच इज म्यू नॉट I² इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2πr। तो इतना सिंपल था, लेकिन स्टूडेंट फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट वायर का एंड फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स का। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें इसमें। ये भी 3 मार्क क्वेश्चन पूछा जा चुका है। He says find the current I2 if the wire XY is to be supported in mid-air where small m is its mass per unit length. Let me explain, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, एक में करंट 75 एम्पियर फ्लो कर रहा है I1, हमें I2 की वैल्यू निकालनी है ताकि ये जो वायर है XY ये सपोर्ट हो जाए मिड एयर में। आप जानते हैं कि कोई भी वायर है एक फोर्स तो नीचे को जरूर लगता है, कॉल्ड वेट, वो होता है M इंटू जी। ये कैपिटल M क्या है? ये मास है इस वायर का। अगर यूनिट लेंथ का मास छोटा m है और लेंथ अगर L हो जाए तो टोटल मास कितना होगा? स्मॉल m इंटू L। अब अगर इस वायर को सपोर्ट करना है एयर में तो एक फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो मैंने पहले ही फोर्स दिखा दिया ऊपर को। तो कैन यू नाउ टेल मी कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए ऑफ द करंट I2? मैंने नहीं मार्क की थी, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? यू विल से ये जो फोर्स है ये तो रिपल्सिव फोर्स है, और अगर रिपल्सिव फोर्स है तो यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए एज कंपेयर टू I1, तो उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो अब तो बड़ा सिंपल है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसे बैलेंस कर देना चाहिए वेट को। वेट यहाँ लिखा हुआ है और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आप जानते हो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू L। सो ये L कट गया और यहाँ से हम I2 की वैल्यू लिख सकते हैं। So that was all for today, students. Thank you very much for watching.